चलिए। सर आ रही है। आ रही है? अच्छा ठीक, नहीं आ रही है ना? हाँ हेलो दीप। अरे हाँ कहा गया। अच्छा आ रही है ना? इसको रिकॉर्डिंग में है। ओके बंद करने के लिए बता दो थोड़ी सी। बंद करने के लिए हाँ वीडियो पूरा हो जाएगा। हाँ? इस कोने में लाल लाल दिखेगा, ठीक है? ये कर देना है। इसके ऊपर इन ऑल मीटिंग, हाँ इसके बाद क्लिक करने के बाद आएगा, उसमें कर दीजिएगा यूट्यूब कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो नवदीप, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो आज जो है हम पढ़ा रहे हैं पाठ लेसन 9 है द कॉबलर एंड द फेरीज। हाँ पाठ निकालने सब लोग। पेज नंबर है 54, ठीक है? डालिए वो। हाँ हाँ 54 पेज है लेसन 9 है। हु इज द कॉबलर? कॉबलर कौन है? सेकंड है व्हाट इज द फेरी? फेरी क्या होती है? कॉबलर जानते ही हैं, जो हमारे जूतों की मरम्मत करते हैं, नए जूते बनाते हैं। कॉबलर मीन्स मोची, फेरी मीन्स परी, ठीक है? हाँ अब इसके कैरेक्टर्स हैं बिनु, द कॉबलर, धनिया, हिज वाइफ, द फेरीज, नरेटर, जो सूत्रधार है। Dinu's was soft. He and his wife were busy making shoes with their tools. Dinu, this is the last piece of leather and we won't have money to buy any more. I am afraid we will have no food from tomorrow. Dania, don't worry, God will help us and everything will be all right. Narrator, Dino cut his last pair of shoes and night and went to bed. He was worried when he woke up and the next morning and went to his workshop. He was surprised. Dino, Dhania, come here. Look at this. A new pair of shoes shining bright. Dhania, they are beautiful. I knew everything would be all right, but who made these shoes for us? Dino, I don't know. Narrator, Dino went to market and sold the shoes. He bought more leather with the money. That night also he cut the leather for shoes and found them clean and ready in the morning. The same thing continued night after night. A few days later, to his wife, how can this be true? After all, who makes the shoes for us? Let us hide behind the door tonight and find out who
our friends are. Narrator. That night they hid behind the door and waited. After some time, they saw 5 fairies enter their workshop. They were carrying tiny cobbler's tools in their hands. They sang and danced as they sat down to make the shoes. Fairies. We are the 5 busy fairies. We like to help the needy. We like to feed everybody, except the ones who are greedy. Later, they finished their work and went away. Dino and his wife entered the workshop. Dino says, wonderful, kind, little fairies. They are धनिया आई के बाद जो ऊपर अपास्ट्रोफिस लगा हुआ है, डबल एल लगा हुआ है, वहां पे आई सेल, ठीक है, कुछ छिपा हुआ होता है, आई सेल या और कुछ होता तो विल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं मेक सम नाइस क्लोथ फॉर द फेरीज. नरेटर धनिया saved clothes for the fairies. The following night, when the fairies came to the workshop, they were surprised. They found 5 pair of bright and colorful clothes on the floor in place of leather. They put them on happily and sang and danced all night. Dino and his wife never forgot their kindness and continued their work regularly. They lived happily ever after. तो बच्चों, ये तो आपकी इंग्लिश थी. अभी आपको थोड़ी मैं हिंदी में बता देता हूँ उसको अर्थ. ठीक है, स्टार्टिंग से. हाँ, यहां से चलते हैं नरेटर से. दीनोज वर्कशॉप, दीनों की एक वर्कशॉप में उसका कारखाना, दीनों का कारखाना है. he and his wife are busy making shoes with their tools. वो और उसकी पत्नी बिजी मीन्स व्यस्त हैं, मेकिंग माने बना रही हैं, बनाने में, शूज जूते विद देयर टूल्स अपने औजारों से वो और उसकी पत्नी जूते बनाने में व्यस्त हैं. अभी दीनू यहाँ कह रहा है अपनी पत्नी से, धनिया से क्या कह रहा है? कह रहा है दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी to buy any more. I am afraid we'll have no food on tomorrow. दीनू अपने पत्नी से कह रहा है कि this is the last piece of leather. leather में चमड़ा, लास्ट माने अंतिम, पीस माने टुकड़ा, इस माने यह है. दीनू अपनी पत्नी से कह रहा है यह चमड़े का जो टुकड़ा है अंतिम टुकड़ा है. We don't have money, हमारे पास धन नहीं है. to buy any more, और अधिक चमड़ा खरीदने के लिए हमारे पास कोई भी धन नहीं. धन मतलब रुपया पैसा नहीं है. आई एम अफ्रेड, मैं भी तो डरा हुआ हूँ. I have no food for tomorrow, हमारे पास कल के खाने के लिए नहीं होगा. धनिया कहती है डोंट वरी, चिंता मत करें. गॉड विल हेल्प अस. गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान. हेल्प मीन्स मदद, अवश्य मीन्स हमारी, ईश्वर हमारी मदद करेंगे. विल और सेल भविष्य काल में प्रयोग करते हैं
आते हैं वो बच्चों। वो कहते हैं, धनिया कहती है अपने पति को कि गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ईश्वर हमारी मदद करेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेटर कहता सूत्रधार जो है कहानी के, वो कह रहे दिनों कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट। दिनों अपना जो है जो चमड़ा है लास्ट पेयर जूते का अंतिम पेयर काटता है एट नाइट, रात में, एंड वेंट टू बेड और सोने के लिए चला जाता है। He was worried, वो चिंतित था। When he woke up the next morning, जब वो अगली सुबह next morning में अगली सुबह जागा and went to his workshop और वो अपने कारखाने गया, he was surprised, वो आश्चर्यचकित हो गया। और दीनो कहता है, बुलाता है, धनिया धनिया come here, look at this, धनिया धनिया come here, यहाँ आओ, look at this, इसे देखो, a new pair of shoes shining bright। बुलाता है अपनी पत्नी को, धनिया धनिया यहाँ आओ, इसे देखो, एक नई जोड़ी जूतों की चमकती हुई चमकदार चमचमाती हुई नई जूतों की एक जोड़ी। धनिया, they are beautiful, I knew everything would be all right, they are beautiful, वो सुंदर है। I knew, मैं जानती थी, everything would be all right, कि सब कुछ ठीक होगा। But who made these shoes for us? लेकिन इनको, इन जूतों को हमारे लिए किसने बनाया? दिनो, I don't know, दिनो कहता मैं नहीं जानता। नरेटर सूत्रधार कहते हैं, दिनो went to market and sold the shoes, दिनो बाजार जाता है और गया और उनको जो जूते हैं उनको बेचता है। He bought more leather with the money, और वो उससे जो धन प्राप्त करता है उससे अधिक चमड़ा खरीद कर लाता है। That night also he cut the leather for shoes and found them soon and ready in the morning। उस रात वो उस चमड़े को काटता है जूतों के लिए, जूता बनाने के लिए, और सुबह वो उन्हें सिले हुए और तैयार पाता है। The same thing continued night after night, the same, ठीक उसी प्रकार से कोई चीज नाइट आफ्टर नाइट, हर रात को वो लगातार ऐसा ही उसे मिलता है। A few days later, कुछ दिनों के बाद दिनो to his wife, अपनी पत्नी से कहता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये सत्य कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल, इसके बाद भी मेक द शूज फॉर अस, कि हमारे लिए जूते कौन बनाता है? लेट अस फाइंड बिहाइंड द डोर टुनाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर। आओ चलो दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और देखते उनको पाते हैं कि हमारे मित्र कौन है। मित्र कौन होता है? जो हमारी भलाई सोचता है। तो भला करती थी परियां, तो वो कहते हैं कि चलो दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और उन्हें हम पाते हैं कि कौन हमारे मित्र है। नरेटर, that night they hid behind the door and waited। उस रात को वो दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं। After some time, कुछ समय बाद, they saw 5 fairies entered their workshop। कुछ समय के बाद 5 परियां
उन्होंने देखा कि 5 परियां उनके कारखाने में प्रवेश करती हैं। They were carrying tiny cobbler's tools in their hands. वे अपने हाथों में एक टिनी कॉबलर्स टूल मैंने छोटे छोटे मोची के औजार अपने हाथों में लेकर के वो लाती हैं। They sang and danced, वो गाती हैं और नाचती हैं। And they sat down to make the shoes, और उसके बाद वो जूते बनाने के लिए बैठ जाती है। पेरिस क्या करती हैं? गीत गाती हैं। We are the 5 fairies. We like to help the needy. We like to feed everybody, except the poor who are greedy. We are 5 busy fairies. हम 5 व्यस्त परियां हैं। We like to help the needy. हम जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करते हैं। We like to feed everybody. हम हर व्यक्ति को, हर किसी को भोजन कराना पसंद करती हैं। Except ones who are greedy. उसके सिवा जो लालची है। ठीक बच्चों, अब आगे नरेटर। प्रदीप, आवाज आ रही ना? अच्छा, नरेटर। They finished their work and went away. Dinu and his wife entered the workshop. अब जो सूत्रधार है वो कहते हैं they finished their work and went away. वे अपना कार्य पूरा करती हैं and went away, और चली जाती हैं। Dinu and his wife, दीनू और उसकी पत्नी entered the workshop. तीनों और उसकी पत्नी वर्कशॉप, इस कारखाने में प्रवेश करते हैं। तीनों such wonderful, kind little fairies they are. तो वंडरफुल अद्भुत, काइंड मतलब दयालु, ये छोटी परियां हैं। धनिया, I will make some nice clothes for the fairies. I will make, मैं कहती है, धनिया कहती है कि मैं कुछ नाइस अच्छे वाले कपड़े फॉर द फेरीज में परियों के लिए बनाऊंगी। नरेटर, धनिया शेड्यू clothes for the fairies. धनिया परियों के लिए कपड़े सिलती है। The following night, उस रात, when the fairies came to the workshop, जब परियां कारखाने में आती हैं, they were surprised, वो आश्चर्यचकित होती हैं। They found 5 pairs of bright and colorful clothes. वे 5 जोड़ी चमकीले और कलरफुल बने रंगीन कपड़े फर्श पर, इन द प्लेस ऑफ लेदर, जहां पे लेदर वाला चमड़ा रखा रहता था, चमड़े के स्थान पर वो पाती हैं। They put them, वो उनको पहनती हैं। Unhappily, खुशी खुशी, and sang माने गीत गाती हैं, and danced माने नाचती हैं। All night, पूरी रात उन्होंने क्या किया कि उन कपड़ों को खुशी से पहनती हैं और पूरी रात उन्होंने गाया और नाचा। Dinu and his wife never forget their kindness. दीनू और उसकी पत्नी कभी भी उनकी दयालुता और कंटिन्यूटी मतलब उनकी लगातार जो उन्होंने उनके
के लिए काम किया तो कभी नहीं बोलेंगे। उनकी एंड कंटिन्यूड और कंटिन्यू देयर वर्क रेगुलरली, और उनका जो कार्य था नियमित रूप से किया। दे लिव्ड हैप्पीली एंड आफ्टर। तो तीनों ने इसके बाद जो है उनकी दया को कभी नहीं भूला, और लगातार उन्होंने, उसने दिनों ने और उसकी पत्नी ने काम किया नियमित रूप से। दे लिव्ड हैप्पीली एवरी आफ्टर। इसके बाद वो और उसकी पत्नी, तो दे का मतलब है दोनों से, खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है। और ऑनेस्ट पर्सन इज द होनेस्ट वर्क ऑफ गॉड। एक्सरसाइज है, थोड़ी सी देख लीजिए। वर्ड पावर है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर। चमड़े से 5 चीजें जो बनाई जाती हैं उनको आपको लिखना है। नंबर 1 में बैग लिखा हुआ है, और बैग के बाद आप थोड़ी से उसी बुक में और भर लीजिए। बैग के बाद भरिए नंबर 2 में भरिए, वो है 1 में बैग्स हो गया, लिखा ही है बैग्स बनते हैं चमड़े से। दूसरे में पर्स, PURSE, पर्सेस। इसके बाद है नंबर 3 है शूज, चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। इसके बाद चमड़े से बेल्ट, BELTS, बेल्ट्स। इसके बाद 5वां नंबर है जैकेट भी बनते हैं, CKET, जैकेट्स। ठीक बच्चों, ये 5 चीजें चमड़े से बनाई जाती हैं। इसको अपनी बुक में हम एक्सरसाइज में लिख लेंगे। इसके बाद राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट लिखना है इसके, इनके। हैप्पी का अनहैप्पी लिखा हुआ है। हैप्पी माने प्रसन्न का, अनहैप्पी माने दुखी। हैप्पी के सैड भी हो सकता है, लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में उसे लिखिए। काइंड, काइंड में दयालु का क्रूअल, नाइट का डे, ब्यूटीफुल का अगली, ब्राइट का डिम। ठीक है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है? सर। आ रही है? सर। अच्छा, हाँ तो लिख लेते हैं। उसी के सामने पेंसिल से और लिख लीजिए। हाँ, नंबर 2 है नंबर में लिख लेते हैं अपोजिट। इधर है वर्ड्स और इधर है अपोजिट्स। ठीक है, तो शब्द और विलोम। पहला है हैप्पी का अनहैप्पी, लिखा ही है बुक में। हैप्पी का अनहैप्पी, इसके बाद है सेकंड नंबर है काइंड, काइंड मीन्स दयालु का क्रूअल, CRUEL, क्रूअल मीन्स निर्दयी। इसके बाद तीसरा नंबर है नाइट, NIGHT, नाइट मीन्स रात, रात को हो जाएगा डे, दिन। इसके बाद चौथा नंबर है बच्चों ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इसका हो जाएगा अगली, UGLY, अगली माने बदसूरत, जो सुंदर नहीं है।
पांचवा नंबर है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट का है डिम, DIM, डिम। बच्चों इस तरह से आज हम यहां तक इसको पढ़ा रहे हैं। अभी है तो बहुत कुछ, बुक में बना लीजिए आप लोग। तीसरा नंबर है मैच द पीपल विद द वर्क दे डू फॉर यू। उन लोगों को आपको मिलाना है जो हमारे लिए कार्य करते हैं। डेंटिस्ट क्या करता है? लुक आफ्टर योर टीथ, हमारे दांतों की क्या करता है? देखभाल करता है। आपके दांतों को देखभाल करता है ना डेंटिस्ट, और दंत चिकित्सक जो दांत के डॉक्टर होते हैं। गोल्ड स्मिथ माने होता है स्वर्णकार जो सुनार होता है, वो क्या करता है? लुक आफ्टर के नीचे बात मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सोने की आभूषण बनाता है। तो दूसरे नंबर को आपको चौथे नंबर से मिलाना है। काबलर मोची, उसको तीसरे नंबर को पांचवें नंबर से मिलाना है। मेक्स एंड मेंट्स शूज, जो हमारे लिए जूते बनाता है और जूतों की मरम्मत करता है। बार्बर, कट योर हेयर, मतलब कट्स योर हेयर, आपके जो हमारे बाल हैं उनको काटता है। कारपेंटर, मेक टेबल्स एंड चेयर्स, लास्ट वाले को पहले वाले से मिलाना है इसमें। मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स, मतलब जो कारपेंटर की पढ़ाई है तो हमारे लिए मेज और कुर्सियां बनाता है, फर्नीचर बनाता है। क्या करता है? फर्नीचर बनाता है। इस तरह से बच्चों वो कार्य करता है। इसके बाद समझ बात आ गई? हाँ, तो उनको मिला लीजिएगा। इसके बाद है चौथा नंबर है, अब इसकी मीनिंग भी हमें लिखाना है। जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी हमें आपको बताना है। तो फिर हम बाद में लिखाएंगे इसकी मीनिंग। आज बच्चों इसके बाद है, मैं थोड़ी सी मीनिंग आपको लिखा दूं क्या? देखिए पीछे मीनिंग लिखी हुई है, आपके पीछे मीनिंग लिखी हुई है, तो उससे मीनिंग भी लिखना है, याद भी करना है। ठीक है? अब देखिए इसमें आपको जो लिखा हुआ है पेंसिल से आप उसमें लिख लीजिए, और जब बुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हुए आप लिखेंगे। हाँ देखिए, जब आप लिखें तो लेसन डालेंगे इस तरह से। इसके बाद दो लाइनें खींचेंगे इसे देख रहे हैं? हाँ, अब यहां पे लिखेंगे वर्ड्स माने शब्द, और इसके बाद लिखेंगे वर्ड्स के बाद है प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन ये उच्चारण है, और ये इसकी मीनिंग है। साफ अक्षरों में इस तरह से हमें लिखना है बच्चों। हर बार हर पार्ट को शुरू करेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आप स्कूल में हो तो बहुत अच्छी से और बताते हैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले हम मीनिंग लिखते हैं। इसमें है ऑल राइट, ए को बनाएंगे कैपिटल से, ऑल
RIGST, जैसा मैंने आपको बताया था, पहला कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर से अक्षर बनाएंगे, कर्सिव राइटिंग से लिखेंगे, पहला अक्षर तीसरे प्रकार में बनाएंगे, बाकी चौथी प्रकार के। ऑल राइट और ऑल राइट में होता है सब ठीक हो जाना, सब ठीक हो जाना। ठीक बच्चों, इसके बाद देखिए एनीवे, ए और वाई, ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बुक से लिख लीजिएगा। एनी वे, एनी वे मीन्स होता है जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। ठीक बच्चों, और देखिए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। इसके बाद बच्चों है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। आगे है ब्लेस, BLESS, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना। ठीक बच्चों, तो इस तरह से, हाँ मीनिंग बहुत है। बोलिए, पूछना है कुछ? कुछ पूछ रहा हो, पूछो, बोलो। नीचे नहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख पा रहे? अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा तो ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं हम। नीचे की ब्लैक बोर्ड खराब, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ब्यूटीफुल तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ब्यूटीफुल का जो है उसके आगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ब्यूटीफुल तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो लिख लो और आगे हम इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ दिखाई देते हैं। न दिखाई पड़ता हो तो बस इस तरह बताना चाहिए हम। ठीक है, संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है। हाँ, तो देखिए BLESS, और कोई लड़की लगता नहीं है तो दीप के अलावा ब्लेस आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना। इसके बाद है ब्राइट, BRIGST, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उसी से मैं लिख रहा हूं। ना समझ में आए तो किताब से भी देख सकते हैं। ब्राइट मीन्स है
चमकता हुआ, चमकदार, चमकीला, चमकता हुआ, या चमकीला भी कह सकते हैं, चमकीला। ठीक है। इसके बाद बिजी, बहुत पूरा नहीं दिखाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, यही तक दिखाते हैं। बिजी, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, और बच्चों बिजी मीन्स व्यस्त लिख लिया। मीनिंग तो बहुत सारी है, और इसको मैं जो है और लिखा दो थोड़े से। इसके बाद और इसको याद भी करते जाना। ठीक है, ठीक है बेटा। जो हम दिखा रहे हैं उसको आपको पढ़ते भी जाना, याद भी करते जाना। इसके बाद कैरेक्टर, ब्लैक बोर्ड ही खराब है, यहां दिखाना पड़ेगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स होता है कैरेक्टर मीन्स चरित्र या नाटक के पात्र। नाटक के जो पात्र है, नाटक के पात्र, और या चरित्र भी होता है। क्या होता है? चरित्र। लीजिए चरित्र, आदमी कहता है ना कैरेक्टर खराब है, अच्छा है, वो चरित्र भी होता है। कैरेक्टर में यही अवश्य में कैरेक्टर पात्र भी होते हैं। कॉबलर, इसको लिखिए कॉबलर, COBBLER, कॉबलर में होता है मोची, जो जूते बनाते हैं। इंटर्स माने प्रवेश करना, ENTER, इंटर्स। इंटर्स माने प्रवेश करता है या करती है, और इंटर्स माने प्रवेश करता है, प्रवेश करना। ठीक बच्चों, और इसी में इंटर्स लिखा है जो आप उसमें, इसका तो होगा इंटर्स। किताब में गलत लिखा हुआ है। इंटर्स माना हो जाता है उसका प्रवेश करता है या करती है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, करती है, करते हैं, कुछ भी है। ठीक है, ये तो आज यही तक आधा घंटा हो गया। तो है
तो बंद किया जाए। हाँ तो पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।